go on task and select piping. Okay, now we started piping. Okay, common views. Hmm. Interesting. Yes. We are completed equipment and structure. Okay, then now we are starting piping. Okay, so first of all you need to maintain hierarchy. First you select the piping system. Here put the name piping system. Piping system. Okay, enter. Then go to piping system and right click, then select a pipeline, new, create a pipeline. Just a minute. Sample project, this one. This is a pipeline number. Okay, and sample project. So first of all, we wrote this line. Okay, this is so simple. So go on piping system and new system, then create a pipeline. Pipeline. What is the name of this pipeline? 150B6. Okay, put the name here, 150B6, this one, then enter. Okay, just click. स्क्रीन शो नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है भाई? यहाँ तो सब ठीक चल रहा है. अब सो हो रही है, आवाज आ रही है सही से? हेलो, Screen is visible, sir. Visible. Okay. You need to maintain the hierarchy. In hierarchy, you should place piping system. Okay, then you should place the piping system. First of all, after piping system, you need to maintain pipeline. Okay? All the pipeline are in piping system. So first of all, we model 150B6, this one, where to where this pipe are going, cracking tower to heat exchanger. Okay, double heat exchanger. The nozzle N5 to N1. Just a minute. Sorry. This nozzle is N5. N5. This nozzle to
this nozzle. This nozzle. तो यहाँ पे एक और नोजल है ना हीट एक्सचेंजर में, तो एक और नोजल है ना उस नोजल पे जाएगा। यहाँ No, sir. से Heat exchanger have two nozzles, not a two single. nozzle ना, हाँ, Yes, one two is nozzle. placed, other is not. Okay, the other one is remaining this nozzle. Okay, so this nozzle to this nozzle, which is not mentioned here. Okay, not modeled here. So just a minute, I'll say something. Basically, what is piping system and pipeline? Okay, I'll teach you about locate filter. What are you doing in pipelines and piping features, nozzles, parts, what is pipelines, etc. Okay, what you're doing in is a connection, control point, etc. What you're doing in all, and this one root pipe, insert split, and insert component, and insert tab. These four are usable in basically these four are using in crack version. Okay, after doing that, if you are going to project live project, then you use this one for creating the WBS model. Okay, for extracting the isometric, this is used. So we are using only three. Basically, we are used one root pipe and insert component. Okay, so this is locate filter, and this is piping feature, nozzle, parts, runs, and this one is a pipe route and insert component. Okay, तो आप लोग अपना अपना मॉस देख लो, ठीक है। आप अपना अपना मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट शोइंग द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट, ठीक है। नहीं दिख रहा मेरा स्क्रीन किसी को भी? My screen is not visible to all of you. Yes, not visible. Okay, not visible ना, गुड। आप लोग अपना अपना SP3D पे जाओ, ठीक है। लोकेट फिल्टर बोलूंगा तो लोकेट फिल्टर पे जाना, ठीक है। देन वर्टिकल टूल बार बोलूंगा तो वर्टिकल टूल बार पे जाना। वर्टिकल टूल बार विच मीन्स जहाँ पे आपका पाइप रूट रहेगा, इंसर्ट कंपोनेंट रहेगा, समझ पा रहे हो? दिस वन। नहीं 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 रुको, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। देखो ये वर्टिकल टूल बार है, ठीक है। ये वर्टिकल टूल बार है और ये लोकेट फिल्टर है। तो मैं जहां बोलूंगा वहां आप लोग जाना, ठीक है। देखना कि इसका क्या यूज होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जस्ट सॉरी स्क्रीन कितना मेरा खुला हुआ है, स्क्रीन सो रही है वैस? यस सर, हो रही है सर, हो रही है। हो रही है? हाँ, कहाँ सो रही है? मैंने तो बंद कर रखा है। आपकी नहीं हो रही सर, स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब नहीं हो रही। ओके, सबसे पहले हमने क्या बनाया? पाइपिंग सिस्टम इन हायरार्की। ओके, सो व्हाट इज पाइपिंग सिस्टम? एनीबॉडी यू वांट टू आंसर देम? पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग पूरा सिस्टम, पाइपिंग सिस्टम को पाइपिंग सिस्टम कहते हैं, जो इक्विपमेंट से अलग के दूसरे इक्विपमेंट में जाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है। कौन है? फ्लो जैद? ऑफ फ्लूइड सर। ठीक है, और बताओ। पाइपिंग इज अ मीडियम which you can transfer from one place to another place. वो तो यार पाइपलाइन भी करता है हमारा पाइपिंग सिस्टम। ओके, जिसमें हमारा टोटल पाइपलाइन कैलकुलेट होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि पाइपिंग सिस्टम
आर द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पाइपलाइंस इन योर मॉडल। इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज करता है टोटल पाइपलाइंस को आपके मॉडल में, समझ रहे हो। इस तरीके से जो भी, जैसे पाइपिंग सिस्टम में बहुत सारा पाइपलाइन आ जाएगा, जितना भी प्लांट में है ना, जब भी मैंने शो किया, ठीक है, वो टोटल पाइपिंग सिस्टम में आ जाएगा, समझ रहे हो। वो सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा पाइपिंग सिस्टम, देन उसमें पाइपलाइन को लोकेट करोगे, उसके बाद ही वो पाइपलाइन कैरी करेगा आगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब इसमें पाइपलाइन पाइपलाइन आ रहा है, देन पाइपलाइन अगर हम देखते हैं, सबसे पहले 1 मिनट में कुछ दिखा देता हूँ तुम्हें, हायरार्की थोड़ा बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट। क्लियर नहीं है हायरार्की अभी तक। आपको नहीं समझ आएगा, मैं कुछ दूसरा सोच रहा था, ठीक है, कोई नहीं। देखो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर ट्रेनिंग, देन यूनिट, देन then area, then unit. Yeah, if you want to choose area, unit, then area, both are okay. Okay, then you have need to maintain piping system, then pipeline, then आपका आएगा, हायरार्की में नहीं आएगा, लेकिन उसके नीचे जो रहेगा आपका वो पाइपिंग फीचर रहेगा, ठीक है। पाइपलाइन, pipe runs, after pipe runs, piping feature, after piping feature, piping parts, ओके, पाइपिंग पार्ट्स। ये कैसे आ रहा है, हायरार्की मेंटेन हो रहा है। इफ यू वांट टू राइट दिस वन, देन यू कैन राइट इट, ओके, इन योर कॉपी नोटबुक। वो मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी, ठीक है, जब रूटिंग करूंगा देन मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इस चीज को कि कैसे कैसे हायरार्की मेंटेन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले लिख लो आप, ट्रेनिंग, एरिया, यूनिट, then piping system, then pipeline, after pipeline, piping runs, this one, then piping feature, okay, then piping parts, this one, okay, this is the pipelines, then piping runs, then piping feature, then piping parts. First क्या sir once again. First training area unit system. Training area unit system, then piping system, Okay. then pipeline, Okay. here, okay. 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 Till pipeline we are created in the hierarchy, okay. Then pipe runs, after pipelines, pipe runs, after pipe runs, piping feature, then piping parts. This is the actual hierarchy of piping system, of piping. Hello. हाँ. ठीक है, यहाँ तक हो गया। Is it done or not? Okay, is it clear? Good. Then we have, just a minute, I give you everything, just a minute.
ये साई कहाँ चला गया? कैल भाई हाँ टहले निकल जाते हो तुम बीच में। साई कहाँ चला गया? एक साथ दो दो बंदे गए। Ravin, you contact the site. Yes, sir. I will. So he came. ओके, हेलो। कहाँ चले गए थे साई? हाँ, थोड़ा इशू हो गया सर, पता नहीं, ऐसा 2 दिन भर काट रहे थे, पता नहीं आज पर कुछ नहीं होता होता आज ऐसा हो रहा है, बीच बीच में कट जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, समझने का ट्राई करना थोड़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेसिक के साथ में, क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। पाइपिंग सिस्टम तक हमने कवर किया, देन हमारा पाइपलाइंस है, ठीक है। पाइपलाइंस में क्या है? पाइपलाइन इज द वे ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग रन्स, ओके। पाइपिंग सिस्टम में क्या किया हमने? पाइपिंग सिस्टम भी एक हमारा वे है ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। किसको ऑर्गेनाइज करने का? पाइपलाइंस का, है ना। बट अब पाइपलाइंस को हम बात कर रहे हैं, तो पाइपलाइंस में हमारा क्या है? पाइपलाइंस आर द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पाइप रन्स, ओके, देयर इज द रन्स, ठीक है। पाइप रन, दिस वन, ऑर्गेनाइजिंग पाइप रन इन योर मॉडल एंड क्रिएटेड इन द पाइपिंग सिस्टम। आप अपने मॉडल में क्या बात कर रहे हैं? तो सर ने बंद कर रखी है। ओहो, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, पीपीटी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ अब सो रहा है, ठीक है। देखो हमने कहाँ तक अभी सीखा? पाइपिंग सिस्टम तक, ठीक है। पाइपिंग सिस्टम में क्या था हमारे पास? ये पाइपिंग सिस्टम एक वे है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं पाइपलाइंस को, है ना, अपने मॉडल में। सेम हेयर, pipelines are the way of organizing pipe runs in your model, ठीक है। पाइपलाइन में क्या करते हैं? पाइप रन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। हायरार्की मेंटेन हो रहा है ना। पाइपिंग सिस्टम में पाइपलाइंस को ऑर्गेनाइज किए, पाइपलाइंस में पाइप रन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। और कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? इन द पाइपिंग सिस्टम। सिस्टम में हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड हमारा क्या था ऑप्शन? इसके बाद पाइप रन्स, अभी लिखे नहीं क्या? बता नहीं रहे आप लोग? हायरार्की बताना है जो मैंने अभी बताया, कोई अवैस बताना। इमरान, जैद, प्रवीण, Yes, sir. हायरार्की, Training area, unit system, piping system, pipeline, pipe runs, piping feature, and parts. गुड। इसे नोट डाउन तो करो कम से कम, ठीक है। देन पाइप रन्स है। पाइप रन्स में क्या है? पाइप रन इज ए कनेक्टेड सीरीज ऑफ पाइपिंग फीचर, ठीक है। ये कनेक्टेड सीरीज है किसका? पाइपिंग फीचर का, ठीक है। ये एमपीडी में यूज होता है बेसिकली, एंड फ्लो डायरेक्शन बेस में होता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक है। पाइप रन से ही हम फ्लो डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं कि किस तरफ का फ्लो डायरेक्शन है, ईस्ट देन वेस्ट देन वेस्ट, दिस टाइप, ओके। सॉरी, वन और मोर पाइप रन्स मेकअप ए पाइपलाइन, ठीक है। एक या एक से ज्यादा पाइप रन जो रहेगा वो हमारा कंप्लीट करेगा पाइपलाइन को। देखो बताऊंगा मैं इसके बारे में अभी और, ठीक है। बेसिक समझ लो थोड़ा थोड़ा,
देन पाइपिंग फीचर है। पाइपिंग फीचर में क्या है हमारा कि व्हेन यू रूट ए पाइप रन when you route a pipe run you place feature high defining high level design information as you go। ठीक है, आपको जब भी पाइपिंग करनी है, जब भी आपको रूटिंग करनी है तो आपको फीचर में रह के करनी है। क्यों रह के करनी है? ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा डिजाइन जो है वो हाई लेवल का सही रहता है, उससे दिक्कत नहीं होती है। किसी और में जाकर करोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, सिलेक्ट नहीं होगा, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ये है पाइपिंग फीचर का। पाइपिंग फीचर में क्या क्या हमारा आ सकता है? स्ट्रेट, टर्न, ब्रांच, एंड, चेंज, रन चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट एंड अलोंग लेग कंपोनेंट को अगर यूज करना हो तो हम पाइपिंग फीचर में आकर यूज करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। सारा कुछ पाइप फीचर में आके पाइप रूट करना है। हाँ, पाइप फीचर में रख, अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो, बेसिक में क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन टाइप बता रहा हूँ बस। ठीक है, देन पाइप पार्ट्स। हमारा पाइप पार्ट्स में क्या है कि जितना भी हमारा फिजिकल कंपोनेंट होता है पाइपिंग में वो टोटल हमारा पाइप पार्ट्स में आएगा। ठीक है, और ये फीचर से नीचे रहेगा, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल फ्लेंज, कैस्केट, वॉल्स, जो भी आप ले लो, ये सारा क्या है? फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल पार्ट्स है ना। तो ये हमारा पाइपिंग पार्ट्स में आएगा। ठीक है, देन हमारा पोर्ट होता है। तो पोर्ट का कहानी अभी नहीं समझो, पोर्ट का कहानी थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। पोर्ट और कनेक्शन इसे अभी रहने दो। ठीक है, वो 2000 क्लास होने के बाद बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? रूट पाइप, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे? पाइप को रूट करना स्टार्ट करेंगे। हाँ இல்ல இப்போ நம்ம போட சொன்னோம் அத हेलो, இப்போ பைப்பிங் சிஸ்டம் பைப் சேதர் இப்போ எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கானே? இப்போ பிடிஎஃப் காமிச்சா நானே படிச்சிருப்பேனே। प्रवीण, ஒரு நிமிஷம்। हेलो जी, हेलो हेलो प्रवीण, हाँ यस सर, सॉरी सर। ओके, म्यूट योर माइक। हाँ या Just a minute, where is PPT? Here. Okay, it is select. Okay, this one. Just a minute, I'll show you. This one, select. Select which means यहाँ सब क्या करोगे? कमांड से बाहर जाओगे। ओके, जो भी कमांड आप ले रहे हो वहां से आप बाहर जाओगे कमांड से, सिलेक्ट से। ठीक है, आप किसी में भी जाओगे तो सिलेक्ट ऑप्शन कॉमन रहेगा। जस्ट ए मिनट, इन इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग सिलेक्ट ऑप्शन और सेम। ठीक है, आप कमांड से बाहर जाने के लिए राइट की यूज करते हो ना, आप ये भी यूज कर सकते हो, एस्केप यूज कर सकते हो, सब सेम है, सबसे बाहर जाओगे। अगर आप स्ट्रक्चर में जाओगे तो भी आपको रहेगा ये सेम की, आपको मेंशन रहेगा, चाहे आप किसी में भी जाके काम कर लो। इवन आप किसी में भी चले जाओ, HVAC में जाओ, किसी में भी चले जाओ आप। ठीक है, फिलहाल अभी हम कहाँ हैं? पाइपिंग सिस्टम पे। ठीक है, एंड पाइप रूट। पाइप रूट में क्या करते हैं हम? अपना पाइप रूट करते हैं। ठीक है, पाइप रूट में पाइप रूट करना स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट स्प्लिट। इंसर्ट स्प्लिट में क्या करते हैं हम? वेर वी वांट गिव ए जॉइंट, देन वी गो ऑन इंसर्ट स्प्लिट। पाइप को अगर दो टुकड़ों में हमें डिवाइड करना हो तो वहां से हम वेल्डिंग करके दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो वहां उसके लिए हमें क्या करना होगा? इंसर्ट स्प्लिट। अभी मैं दिखाऊंगा इसको करके। ठीक है, देन इंसर्ट कंपोनेंट। इंसर्ट कंपोनेंट में क्या है? कंपोनेंट को इंसर्ट करना है। प्लेस वॉल, स्टीज, इनलाइन कंपोनेंट जो भी होगा, ठीक है, वो कहाँ से हम करेंगे? इंसर्ट कंपोनेंट से करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंसर्ट टैपिंग होता है। जो भी टैपिंग करनी है हमें, टैपिंग, यू नो द वर्ड ऑफ टैपिंग? टैपिंग, आई नो। हाँ, ठीक है, तो टैपिंग करनी होती है। तो टैपिंग करनी होगी तो देन हम कहाँ जाएंगे? इंसर्ट टैप पे। ठीक है, इफ वी वांट टू जनरेट स्पूल, स्पूलिंग, यू नो द स्पूलिंग, हाउ टू कैलकुलेट द स्पूल, ये बात की कहानी है, मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको स्पूल जनरेट करना है तो आपको स्पूलिंग पे जाना होगा। ये बेसिकली आप ये एक्चुअल प्रोजेक्ट पे जब जाओगे, लाइव प्रोजेक्ट पे, देन
ये आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। वहां पे ये सीखने वाली चीजें हैं। और पेनिट्रेशन स्पूल भी वैसे ही सेम हो गया। देन सीक्वेंस ऑब्जेक्ट हो गया। ये सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में क्या होता है बेसिकली कि इसमें हम जो भी कंपोनेंट्स रहता है पाइपलाइन में या स्पूल में जो भी है, ठीक है, उसको सीक्वेंस ऑर्डर में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें जैसे मेंशन भी है 1 2 और 3 दिस वन, इस तरीके से, ठीक है। ग्रुप ऑफ पाइप पार्ट्स, इसमें क्या होता है कि WBS असाइन करते हैं। जब हम आईसो निकालते हैं ना, व्हेन वी एक्सट्रैक्ट द आईसो वी हैव टू ऑप्शन, फर्स्ट इज द WBS ऑप्शन एंड सेकंड इज ए पाइपलाइन ऑप्शन। If we select the WBS option, WBS which means work break structure, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा कि सिंगल 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 करके निकलता है हमारा आईसो, ठीक है। एक एक सर्किट का निकलेगा, सर्किट डिफाइन होता है हमारा। देन अगर हम पाइपलाइन लेंगे तो इकट्ठा पूरा पूरा पाइपलाइन आएगा, तो वो सर्किट डिफाइन नहीं होता वहां पे। तो ये फर्क है दोनों में। तो ग्रुप पाइप पार्ट से क्या होता है कि हम WBS असाइन करते हैं। ये भी प्रोजेक्ट की चीज है, एलो नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए हमें एक्सेल शीट चाहिए। इसके लिए एक्सेल शीट इसलिए चाहिए कि कितना टेम्परेचर गिवन है, कितना प्रेशर गिवन है, ईच एंड एवरीथिंग को मेंटेन करना है हमें। डमी प्रोजेक्ट पे क्या करते हैं, हम 0 पुट कर लेते हैं, समझे। और भी चीजें होती है जो हमें ऐड करना होता है, कोरोजन लूप होती है, WBS बनाना होता है प्रॉपर हमें, क्लेम वगैरह करना होता है WBS में। यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, वो एलॉन नहीं आएगा, ठीक है। देन रूट फ्लेक्स पाइप है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट नोजल से सेकंड लास्ट नोजल, दो नोजल होंगे ना पाइप रूट के लिए। जैसे यहाँ इस नोजल से लेकर के इस नोजल तक हम आ रहे हैं, तो दो नोजल हुआ ना, एक पाइपलाइन के लिए दो नोजल चाहिए। तो दोनों नोजल को सिलेक्ट करने के बाद हम अगर काम करेंगे, ठीक है, फ्लेक्स वाला, तो देन हमारा क्या होगा, वो एक ऑटोमेटिक होता है, वो पाइप ले लेता है, ठीक है। इस तरीके से ये सही तरीका नहीं है, इसे यूज मत करना अभी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा तुम्हें। ये परमिशन ग्रुप पार्ट रूटिंग के लिए बता रहा है WBS के लिए, ये सही नहीं है अभी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, हायरार्की क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर हायरार्की प्रवीण? ऐसे है कि क्लियर है? Is it clear in lookup filter? What is pipeline feature? What is piping parts and piping runs? These four. I will go through it once. These four are clear or not? Okay. I will go through it. Yes, sir. Clear. I will go through it once. Okay. And this one vertical toolbar. First option is a root pipe. Second option is a insert split. Okay, where you want to insert a split, which means ki where you want to insert weld. Okay, then go to insert a split. Then the third option is a insert component. Okay, and the fourth option is a insert tab. Then generate a spool. Same. Okay, so we made the pipe. Okay, we model the pipe in SP3D. So first of all, if you go root pipe, okay, then फ्लेंज आपको फ्लेंज लगकर आएगा अगर आप रूट पाइप पे जाओगे तो, बिकॉज यहाँ पे नोजल है, नोजल से एक नोजल में एक फ्लेंज आपको ऑलरेडी इनबिल्ड है, किसमें, कंपोनेंट में, ये इक्विपमेंट में, ठीक है। तो एक नोजल और चाहिए ना बोल्टिंग के लिए, क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि अगर रूट पाइप करोगे देन क्या होगा, हमारा नोजल इनबिल्ड आकर आएगा, ठीक है। अगर हम इंसर्ट कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, देन हमारा क्या आएगा, नोजल ये फ्लेंज हम लगाने का एक ऑप्शन आएगा। जैसे जस्ट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज इंसर्ट कंपोनेंट, सॉरी, रूट पाइप। ओके, जस्ट सिलेक्ट दिस वन, फिल द वैल्यूज। ओके, गो टू पाइपलाइन, मोर, एंड which one you are created, 150B6. okay, just click on this, then put the name here, anything, just like flange, because the first option is a flange. And what is the specification and what is the nominal diameter? Okay, these values, where we have these values, N5. okay, just a minute, I'll show you.
only see first page, okay, not see other page. Just a minute, I'll show you. Here is a created all the pipelines, okay, but you can't see this one. I'm strictly not allowing this, okay. आप लोगों को ये नहीं देखना है, ठीक है। ये बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो, काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ कि मेंशन है, बट आपको नहीं देखना यहाँ से। लेकिन पीएनआईडी की तरफ से देखना है ना सर? बस आपको PNID के लिए PNID उनको देखना है और उसके बाद आपको मॉडल करना है, ठीक है। आप अगर देख लोगे तो दिक्कत होगा आप ही को, ठीक है। आपका वो कैपेसिटी नहीं बिल्डअप हो पाएगा सोचने का, बिकॉज हमारे पास 2D होता है, उसे 3D में कन्वर्ट करना होता है। अगर आप 3D देख लोगे तो क्या फायदा है, फिर कॉपी पेस्ट हो गई ना बात, तो सोचने का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है। देन यहाँ से हम चेक करेंगे कि N5 का नोजल कितना है। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ N5 चेक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। जस्ट ए मिनट, N5 दिस वन 150 रेटिंग एंड 150 साइज एंड 300 रेटिंग, ये है। लेकिन हम यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है, चेक करने के लिए ऑल पे जा करके क्लिक करेंगे। अगर आपको इक्विपमेंट पे क्लिक करना है, नोजल इक्विपमेंट किसी चीज पे भी, तो आपको ऑल पे रह के काम करना होगा, ठीक है। Just a minute. Just click on the nozzle N5, go to properties, N5 nozzle 6 inch and class is 300, यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। Then you need to go piping feature, then pipe route, click here and pipelines, go to pipelines, okay. This one name, put the name here, anything, okay, and select specification, okay. Specification, you just need to select the specification. If you have 150 rating, then you select, just write this, okay, all of you. If you have rating 50, then you select 1C0031. Why we choose that? ये मतलब इस तरीके से ही हमें चूज करना होगा। सिस्टम में इनबिल्ड है कि 150 के लिए हमारे पास 150 यूज करते हैं इस तरीके से, और 32 हम यूज करते हैं 300 के लिए। रेटिंग 300 है, 1500 है, 1800 है, तो सबके लिए अलग अलग है। देखो इसमें है ना बहुत सारा, ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग है। लेकिन बेसिक ये जो हमारा डमी प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो डमी प्रोजेक्ट में हमारा, एक मिनट क्या हो गया, जो डमी प्रोजेक्ट है हमारा, अभी तक हम 150 और 300 के अलावा कोई दूसरा मिला है? तो सर ये सीक्वेंस वाइज ही लगे हुए हैं, 150, 300, 250 ऐसे लगे हुए। आपके सॉफ्टवेयर में सीक्वेंस वाइज दिख रहा है? कुछ नहीं सर, पूछ रहा हूँ ना आपसे। अच्छा पूछ रहे हो? नहीं वैसे नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा कि आप खुद कर सकते हो। जैसे देखो ये 150 है, उसके बाद 300 देखो कहाँ है, यहाँ है। सीक्वेंस वाइज नहीं है ये, ठीक है। डमी प्रोजेक्ट के लिए ये यूज करते हैं। अगर आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करो तो वहां पे आपको स्पेसिफिकेशन मॉडलिंग का वो तरीका बता कर करने देगा, एक स्टेप नहीं खुद से करने देगा। वो का काम हो रहा है हमारा मिलान ऑफिस से, ठीक है, मिलान इटली में है, तो वहां का भी काम चल रहा है हमारा। तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक एक स्टेप वहां से आता है हर जगह। इससे पहले हमारा ऑस्ट्रेलिया काम था बैरप का, ठीक है, बैरप ऑस्ट्रेलिया में, तो बैरप वाला उसमें भी उस सेम प्रोजेक्ट में उसमें भी वैसे ही था।
एक एक स्टेप आता है, क्योंकि कैसे काम करवाना है, कैसे काम चाहिए उसे, वो डिसाइड करेगा ना। तो वो एक मतलब ओवरव्यू बना करके दे सकता है, एक प्रोटोटाइप टाइप, समझ गए? उसमें सब कुछ मेंशन होता है। इसमें मेरे पास अभी है नहीं शायद, मैं दिखा देता तुम्हें कैसे काम करने के लिए आता है, सब पूरा गाइडेंस आता है, पूरा गाइडलाइन आता है हमारा, समझ गए? तो 1C0031 यूज करेंगे 150 के लिए, एंड 2C0032 यूज करेंगे 300 के लिए। अगर ये 1C अगर 232 यूज कर लोगे अगर 300 के लिए, तो नो मैटिंग पार्ट्स आ जाएगा, फिर वो दिख होगा, फिर आपको खुद ही दिख जाएगा, ठीक है? तो अभी कितना रेटिंग है हमारा 150। जस्ट सेलेक्ट 1C0031 and nominal size is 6 inch. Okay, then select standard and go to तो सही है, भटकती है तुम्हारी, ये 200 उधर भागता रहेगा ये। ठीक है, पहाड़ में ही हो अभी तक तुम। ठीक है, ये टेम्परेचर, डिजाइन मैक्सिमम टेम्परेचर और डिजाइन मैक्सिमम प्रेशर बोथ आर 0। ठीक है, ये डायनामिक प्रोजेक्ट 0 कर रहे हैं हम। अगर लाइव काम सीट मिलेगा जहाँ पे हमें गिवन होगा डायमेंशन, सॉरी डेटा, कि कितना कितना हमें डिजाइन टेम्परेचर और कितना, सॉरी डिजाइन टेम्परेचर मैक्सिमम है, कितना उसमें प्रेशर है, ठीक है, वो सब कुछ वहाँ पे गिवन रहेगा, ऑपरेटिंग भी और डिजाइन भी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिजाइन ही हम जब 0 करते रहे तो ऑपरेटिंग क्या ही जरूरत पड़ेगा फिर। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड पे रह करके पाइपलाइन को सिलेक्ट करना है, नेम तो उससे कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। देन सिलेक्ट करना है हमें स्पेसिफिकेशन, देन नॉमिनल पाइप साइज, नॉमिनल डायमीटर, ओके, एलपीएस, देन यूनिट टू गो प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन डिजाइन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड डिजाइन मैक्सिमम प्रेशर। इतना जब आप सिलेक्ट कर लोगे देन आप ओके कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक रूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां तक आपको चाहिए वो जो भी वैल्यू है, आपको सपोज करो यहाँ पे आपका वैल्यू हो 1000, तो लेंथ को 1000 लेंथ में पुट करने के बाद एंटर कर देना, ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा, ठीक है। देन क्या करना है, यू क्लिक एनीवेयर इन द वर्क स्पेस, ठीक है। तो देखो कैंसिल कर दो राइट कमांड, ये पाइप रूट हुआ हमारा, बट ये फ्लेंज लेकर रूट हुआ है ना, डायरेक्ट पाइप तो नहीं रूट हुआ। बट अगर यहाँ से हम पाइप रूट करेंगे, सपोज करो और ऊपर कर रहे हैं या मूव कर लेंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो देखो अब ये डायरेक्ट पाइप रूट हो रहा है, क्या फ्लेंज लेकर के हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसके लिए हम क्या करें, एंगल भी अपना भी लेगा 45 डिग्री एल्बो, 90 डिग्री एल्बो अपना भी लेगा ये इसमें देखो ये बहुत आसान है भाई। अगर आपको तो डायरेक्शन पता होगा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। देन सपोज करो अभी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, साउथ में, ठीक है, ये नॉर्थ में, किसी भी डायरेक्शन में। अभी हम सपोज कर रहे हैं साउथ में जा रहे हैं, तो साउथ में आकर के बस लॉक कर दिए हैं इसको, ठीक है। जैसे अभी देखो नॉर्थ बना, लॉक कर दिए, इसे लॉक करना तो आता ही है, बस क्लिक कर देंगे, एल्बो ऑटोमेटिक पुट होकर आ गया ना। और भी ऑप्शन है हमारे पास, जैसे बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट पहले थोड़ा मुझे सिखाने दो। डायरेक्ट अगर आप रूट पाइप करोगे तो क्या होगा, फ्लेंज लेकर आएगा, ठीक है। देन अगर आप कंपोनेंट पे जाओगे, इंसर्ट कंपोनेंट पे, तो क्या होगा, आपको पहले तो ये फिल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड थी, हमने एक बार ही कर दिया था, सॉरी यहाँ। तो देन टेम्परेचर, प्रेशर, देन ओके, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप हमारा ओपन होगा, एयर, देखो जस्ट सी एयर, ठीक है। अब इसमें सारा कंपोनेंट है,